اور اب خبریں تفصیل سے۔ این آئی اے نے کراس ایل او سی ٹریڈ کیس کے ضمن میں جموں کشمیر کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ این آئی اے نے پولیس، سی آر پی ایف اور آئی ٹی بی پی کی مدد سے پونچھ ضلع کے 9 مقامات پر مشتبہ ایل او سی تاجروں کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے۔ اس کیس کی جانچ کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ بعض تاجرین کے تار ممنوعہ ملیٹنٹ تنظیموں سے جڑے ہیں یا انہوں نے ایسی تنظیموں کو فنڈز فراہم کیے ہیں۔ آج ہوئی چھاپے کی کارروائی کے دوران اہم دستاویزات، ڈیجیٹل آلات اور دیگر تخریبی مواد ضبط کیا گیا ہے۔ جموں کے فلائن منڈل میں پولیس نے بیتی شب پاکستان کی جانب سے ڈرون کے ذریعے گرائے گئے ہتھیار برآمد کیے۔ ان ہتھیاروں میں ایک اسالٹ رائفل، 3 میگزین، 3 راؤنڈ اور ایک ٹیلیسکوپ شامل ہے۔ پولیس کے مطابق بین الاقوامی سرحد کے 6 کلومیٹر دور سوجیاں گاؤں میں یہ ہتھیار ملے ہیں۔ ایک مقامی شخص نے پولیس کو اس کی جانکاری دی تھی۔ تلاشی کارروائی کے دوران پولیس کو ہتھیار دستیاب ہوئے۔ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ حالیہ مہینوں میں سرحد کے قریب ڈرون سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پولیس اور فوج کا کہنا ہے کہ اڑی سیکٹر میں ایل او سی کے نزدیک تقریباً 30 کروڑ روپے کی منشیات ضبط کی گئی ہے۔ ایس ایس پی بارہمولہ رئیس محمد بٹ کا کہنا ہے کہ چوکس سیکیورٹی اہلکاروں نے ایل او سی کے قریب مشتبہ نقل و حرکت دیکھی اور چند پیکٹس کو دستیاب کیا۔ ان پیکٹس سے تقریباً 30 کلوگرام منشیات برآمد کی گئی۔ ایس ایس پی نے کہا کہ ایل او سی کے اس پار سے یہاں منشیات کی منتقلی کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی قیمت 25 سے 30 کروڑ روپے ہو سکتی ہے۔ ایس ایس پی نے کہا کہ اس ضمن میں اب تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ معاملے کی جانچ جاری ہے۔ In the Uri sector, along the LOC, own troops, that is the Indian Army troops, have observed some suspicious movement along the LC, and parties were sent along. Search party was sent along the suspicious movement route, and it was found that some contraband, which is most likely drugs, has been dumped, has been in fact dropped, and the carriers, the drug peddlers, those trying to smuggle drugs into our side of the LC, they have, upon observing the movement of the troops, run away from there and dropped their contraband at the spot. This has been recovered by the troops of the Indian Army. A huge quantity of contraband, which as per the current black market evaluation is coming to around 20 to 25 crores, and it's a huge catch in that sense. The troops are alert, and the synergy on the border is intact, and we are trying our level best that all these attempts of narco terror, where drugs are being pushed in to fund terrorism here in the valley, these are stopped, and there are no disturbances to the internal security climate of Kashmir. چند روز قبل ہندوستانی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران گرفتار کیے گئے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے ایک نابالغ لڑکے کو فوج نے پولیس کے حوالے کیا ہے۔ میندر سیکٹر میں تعینات فوج نے 15 سالہ حیدر علی کو میندر پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس نے اس کا میڈیکل چیک اپ کروا کے اس کو پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ لڑکا 31 دسمبر 2020 کو بھی ایل او سی پار کر کے ہندوستانی علاقے میں داخل ہوا تھا۔ بعد میں اسے ایس او جی نے گرفتار کیا تھا۔ 1 جنوری 2021 کو اسے چکداباغ سے واپس گھر بھیجا گیا تھا۔ دوسری مرتبہ سرحد کے اس پار آنے کی وجہ سے اب اسے پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے تعلیم ڈاکٹر ایس سرکار نے انڈر گریجویٹ فرسٹ ایئر کے طلباء کو ٹیبلٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ہر کالج میں اسکل ڈیولپمنٹ ایک سبجیکٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں سرکاری سطح پر کنڈر گارڈن کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یو ٹی میں پرائمری اسکولز کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ڈل کی صفائی پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر نے کشمیر میں کووڈ ویکسینیشن مہم پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے گلمرگ کو صحیح معنوں میں پلاسٹ سے پاک بنانے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر نے بوٹا پتھری میں کمیونٹی کلاسز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کووڈ کے بعد یہاں کے محکمہ تعلیم نے اچھا کام کیا ہے۔
the undergraduate students, अभी देख सकते हैं, the first year, 75,000 students, they will get tablet. This is very important thing. Skill development के साथ ये अभी हायर एजुकेशन में हर कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट रहेगा, वी वोकेशनल भी शुरू होगा, जैसे हमारे बच्चे को पढ़ाई करने के बाद काम मिल सके। और सारे ट्राइबल स्टूडेंट्स को 2000 ट्राइबल स्टूडेंट्स को भी ये अलग से हम शॉपर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये टैबलेट्स देंगे। Our Jammu and Kashmir government is very eager to develop its school education, primary education and the kindergarten schools. This is the first time 2000 kindergarten classrooms in Jammu and Kashmir division have been established for providing early childhood care in government sector. 2000. पीडीपी के साबिक लीडर व साबिक रुकन असम्बली बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट की पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के एक दिन बाद ही पीडीपी ने टाउन हॉल बांडीपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया। ज़िला सदर मोहम्मद अब्दुल्ला वानी की सदारत में हुए इस इज्तिमा के दौरान पीडीपी वर्कर और लीडरान कुछ ज़्यादा ही सरगर्म नजर आए। पार्टी लीडरान मोहम्मद अब्दुल्ला वानी और ताहिर कादरी ने कहा कि आज का इज्तिमा मामूल की सरगर्मी है, न कि ताकत का कोई मुजाहरा। दोनों लीडरान का कहना था कि किसी के चले जाने से बांडीपुरा में पीडीपी पर कोई असर नहीं पड़ा है और लोग अब भी पीडीपी के साथ जुड़े हैं। हमारा बुनियादी मकसद ये था कि हम पीडीपी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत रखें। हमारी मोहतरमा सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो मिशन है, जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का विजन है, उसको लोगों तक पहुंचाना बहैसियत पार्टी वर्कर हमारी जिम्मेदारी है और हम उसी चीज़ का इरादा करने के लिए आज यहाँ आए थे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कश्मीर के लोगों के दिलों में बस। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के कौमी सदर हाजी कमाल सिद्दीकी का कहना है कि आइंदा असम्बली इलेक्शन में बीजेपी अक्सरियत के साथ कामयाब होगी और पार्टी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। डाक बंगलो बारामूला में पार्टी लीडरों और वर्करों के एक इजलास से खिताब के बाद हाजी कमाल मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का अगला वज़ीर आला बीजेपी से होगा और आवाम के मसाइल हल होंगे। मुकर्रिरीन ने वर्करों को पार्टी को मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के सीनियर लीडरान कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर का गरीब कार्यकर्ता है, जो पिछड़े हैं, जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है, ऐसे लोगों को चुनाव में उतारेगी और मुझे यकीन है कि कोई गरीब का बेटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री भी बनेगा। अनंतनाग के मटन इलाके में माता बर्ग शिखा के मंदिर की बेहुरमती के सिलसिले में मार्टन पुरोहित सभा के सदर अशोक कुमार सिद्धा की क़यादत में कश्मीरी पंडितों के एक वफ्द ने मंदिर में हाजिरी दी और सूरत हाल का जायजा लिया। मंदिर के अहाते में एक मीटिंग का इनेकाद हुआ। इस दौरान वाक़े की मजम्मत की गई। सरकार से मुलविस अफराद को जल्द बेनकाब करके सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर पार्टी सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मदनी ने मटन जाकर पंडितों के वफूद से मुलाकात की। मदनी ने इसको अमन दुश्मन अनासिर की कारस्तानी करार दिया। उन्होंने इंतजामिया से मुजरिमों को सख्त सजा देने की अपील की। मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नर साहब है या चीफ सेक्रेटरी साहब है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे ये बार बार ये अपील करता हूँ कि ये जो वाक़ा हुआ है इसकी तह तक वो जाए। जो भी कल्प्रिट इसमें है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। और अभी हमने कुछ टाइम रखा है, हम इस वक्त गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रहे हैं, मगर अगर कुछ लिमिट तक, अगर 1 हफ्ते तक इन्होंने इस वाक़े की तहकीकात नहीं की तो फिर हम नहीं चुप कर बैठेंगे। उसके लिए फिर सारा जो भी कुछ होगा वो मार्टन मटन से ताल्लुक़ रखने वाले माइग्रेंटों ने मटन में माता बर्ग शिखा मंदिर की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इंतज़ामिया के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए कहा कि वो कश्मीर में पंडितों के मुख्तलिफ मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हुए हैं। मटन के इन बाशिंदों ने
सूर्या भवन जम्मू में एहतजाज किया। उन्होंने मंदिर की बेहुरमती पर सख्त रंजगम का इजहार किया। हम बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं, हम बहुत ही दुखी हो गए हैं, क्योंकि ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी माता के साथ ऐसी बेहुरमती की जाए, क्योंकि ये कम्युनल हारमोनी पर एक बहुत बड़ा आघात है। माता बरकशिका सारे हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की इष्ट देवी है। ये इष्ट देवी राजरानी हमारी है। इस पर आघात हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक कल्प्रिट्स को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये प्रोटेस्ट कभी खत्म। राष्ट्रीय बजरंग दल के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। मटन में एक मंदिर की बेहुरमती के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इस शर्मनाक वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कश्मीर में पंडितों के मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हिंदू आस्था के ऊपर कल प्रहार जो है अनंतनाग के अंदर एक मंदिर को क्षतिग्रस्त करके कि हम हिंदू आस्था के ऊपर प्रहार किया गया है, वो हम कतई सहन नहीं करेंगे। हम एलजी गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि जब तक उस मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया जाता हम इसी प्रकार से सड़कों के ऊपर रहेंगे। पुंछ के मंडी तहसील के बेदर गांव में तेंदुए के हमले में एक 10 साला लड़का जख्मी हो गया। जख्मी लड़के की शिनाख्त मोहम्मद इसहाक के तौर पर हुई है। घर से बाहर जानवरों को चराने के दौरान तेंदुए ने इसहाक पर हमला किया। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ के खिलाफ बरहमी का इजहार किया और कहा कि रिहायशी इलाकों में तेंदुए की बार बार शिकायत के बावजूद महकमा कोई इक़दामात नहीं कर रहा है। इसकी एज होगी कोई 12 से 14 साल। इसका नाम मोहम्मद इसहाक सन वली मोहम्मद है। ये बिदार का रहने वाला है। तो ये सुबह यहाँ पे कोई 8:30 लाया है। इसको लेसरेटेड वाउंड है सर पे भी और राइट लोअर लिम्ब पे भी और राइट हैंड पे भी। तो इसको कोई लाइन ने वहाँ पे बाइट किया है। उसके बाद इधर लाया है तो यहाँ हमने इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करके तो इसको हम सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए पुंछ भेज रहे हैं। तो अदरवाइज पेशेंट जो है स्टेबल है। सुबह एक बच्चा जो है अपने माल मवेशी के हमरा उन्हें घास चराने ले जा रहा था। अचानक उस पर वहाँ पे टाइगर ने जो है। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अगलर शोपियां में कायम मेगा फ्रूट मंडी में कारोबार शुरू हो गया है। इस मंडी से करोड़ों रुपए के मेवाजात मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों को जा रहे हैं। मुल्क भर से व्यापारी सेब खरीदने के लिए अगलर फ्रूट मंडी का रुख कर रहे हैं। इस मंडी से मुख्तलिफ तरीक़ों से जुड़े कम अज़ कम 20,000 अफराद को रोज़गार मिल रहा है। ये मंडी एशिया की बड़ी मंडियों में शुमार होती है। हज़ारों कनाल अराजी पर फैली इस मंडी का संग बुनियाद साबिक़ वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती सईद ने रखा था। रमा बरस सेब को अच्छी कीमत मिल रही है। माना जा रहा है कि इस मंडी से हो रहे कारोबार पर 40,000 के करीब ख़ानदान मुनहसर है। क्वालिटी फ्रूट हम इस साल और ज़्यादा मुहैया करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से इस साल हमारे फ्रूट की शक्ल सही है और कोई स्कैब नहीं है, कोई कुछ नहीं है और फ्रूट का मार्केट जो है वो भी मेरे ख्याल में अल्लाह के फजल करम से अच्छा है और हमारी मंडी दिन ब दिन तरक्की करने में आगे जाती रही। अब इन द मिडस्ट ऑफ दिस सीजन वी वुड नॉट लाइक टू डिस्टर्ब एनीबॉडी, बट यस दैट आई हैव टोल्ड माय इंजीनियरिंग विंग टू क्रिएट अ डीपीआर. माय एएमओ विल अप्रोच डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस to get the demarcation done, and we should be one part is already in the process. The entire mandi will be. त्राल में सेब उतारने का सीजन उरूज पर है। सब जिले में फ्रूट मंडी न होने की वजह से बाग मालिकान को मुश्किलात दरपेश है। किसानों का कहना है कि उन्हें अपना मेवा दीगर अजला को ले जाना पड़ता है। इन्हें ज़्यादा किराया लगता है और वक्त भी ज़्यादा लगता है। काश्तकारों ने बताया कि इंतज़ामिया ने नोडल के करीब मंडी के लिए ज़मीन मुख्तस की थी, ताहम दरकार काम शुरू नहीं किया गया। लोगों ने सब ज़िले में फ्रूट मंडी जल्द कायम करने की मांग की। क्या करिए, अभी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके वो जो लैंड आपने आइडेंटिफाई किया है उसके लिए प्लीज़ फंड वागुजार करें और हमें फ्रूट मंडी त्राल के लिए जल्द से जल्द दस्तयाब कराई जाए। काम स्टार्ट हुआ था ऑफिशियली, जो उनकी लैंड थी वो ट्रांसफ़र करनी थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 3-4 साल से उसमें कोई काम हो ही नहीं रहा है। रिक्वेस्ट है डीसी साहब से भी और गवर्नर साहब से भी और ख़ासकर जो डायरेक्टर साहब हैं मार्केटिंग एंड प्लानिंग की, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस मंडी पर थोड़ा सा ध्यान दें और उस पर जल्दी से। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली साइंस समिट में पहली बार कश्मीर के एक इनोवेशन रिसर्चर को शिरकत का मौका मिला है। डॉक्टर फयाज़ अहमद शेख कुपवाड़ा ज़िले के हेमलतपुरा गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। फयाज़ अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली साइंस समिट से खिताब किया।
ڈاکٹر فیاض نے نیوز 18 اردو سے بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ بے حد خوش ہیں کہ انہیں اس طرح کے بڑے پلیٹ فارم پر بولنے کی دعوت دی گئی. ڈاکٹر فیاض جی ایس یونیورسٹی میں بحیثیت انوویشن ریسرچر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. This is the second science summit organized by United Nations General Assembly. اس کا جو بیسک مقصد تھا it is to raise awareness of the role and contributions of science to the attainment of United Nations Sustainable Development Goals. اب یہ جو United Nations کے جو Sustainable Development Goals ہیں they were conceptualized and curated in 2015 basically to offer a blueprint for the world so that everybody can live happily. The world will be more inclusive, beautiful and sustainable. The agenda was to actually how can we apply science, technology and innovation to create a more inclusive world and more beautiful world, and how can we end poverty, hunger, how can we offer well-being for the people by applying science, technology and innovation. دنیا میں ہم we have a lot of prosperity in some parts of the world, لیکن بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پہ غربت ابھی بھی ہے. poverty is pervasive, inequality is widespread. ابھی اپنے کووڈ کو لے کے آپ نے دیکھا ہوگا many people around the world they are looking for vaccines and millions are gasping for air. So it looks that we are still living in an unequal world. There's a lot of disparity between rich and poor countries. تو اس richness اور poverty کی جو disparity اس کو کیسے ختم کریں گے and what kind of innovation and growth models are needed, that was actually my argument. آپ نے کشمیر میں انوویشن کو لے کر بہت کام کیا ہے. کیا ہمارے پاس جموں کشمیر میں کامیابی کے انوویشن ماڈل نہیں ہے؟ یہاں پہ کشمیر میں بہت سارے ایسے انوویشن ماڈلس ہے, بہت سارے انوویٹرس میں پچھلے 10-15 سال سے ملا ہوں. وی ہیو امپریسو انوویشنز ان کشمیر, لیکن پرابلم صرف یہ ہے ایک ایکٹر سیکٹر انوالومنٹ اتنا ٹھیک نہیں ہے کشمیر میں. ہمارے انسینٹیوز آر ناٹ ویل کرافٹیڈ, ریڈ ٹیپ بہت زیادہ ہے. موسٹ آف دا انوویشنز آر کلڈ when they try to add value to their innovations. So we have wonderful innovators in Kashmir. The only problem is we have dearth of right incentives, اور ایک وہ جو سپورٹ ان کو چاہیے, that support is unfortunately missing. So for a vibrant innovation system we need strong actor sector collaborations and we need proper incentives for these innovations. We continuously focus on one particular source of innovation. For example, we focus universities or research universities or research laboratories. That should not happen. There are multiple sources of innovation. For example, innovations happen outside university. How can we nurture those innovations? That is, I think, that will guarantee successful innovation. ضلع پلوامہ میں آج بھی کئی کاریگر گھریلو کھادی انڈسٹری کو کئی مشکلات کے باوجود قائم رکھے ہوئے ہیں. دستکاری کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے, تاہم اس کے باوجود ہاتھ سے تیار کردہ سامان کی مانگ کافی ہے, مگر کھادی انڈسٹری حکومت کی عدم توجہی کی شکار ہو رہی ہے. پیش ہے ہمارے نمائندے بلال خان کی یہ رپورٹ. ضلع پلوامہ کے نیوا علاقے سے تعلق رکھنے والے محمد اکبر شیخ گزشتہ 60 سال سے کھادی انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کھادی ولیج انڈسٹریز کمیشن کے بھارت کھادی آشرم مشن کو قائم رکھے ہوئے ہیں. محمد اکبر کا شمار ضلع پلوامہ کے ماہر بنکروں میں ہوتا ہے. محمد اکبر کی طرح ہی کئی کاریگر ایسے ہیں جنہوں نے کھادی انڈسٹری کو مشکلات کے باوجود بھی قائم رکھا ہے. ہر سال ان کاریگروں کو مرکزی حکومت کی کھادی ولیج انڈسٹریز کمیشن کی جانب سے سہ ماہی مراعات فراہم ہوتی تھی, لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر گزشتہ 2 سال سے وہ بند ہیں, جس کی وجہ سے اس شعبے سے جڑے کاریگر بے حد متاثر ہو رہے ہیں. میں تقریباً 60 ؤری پنجی کار میں باب صاحب کی کار کران, مگر نمن حالتن مز کی ایم ڈی ایس تران اس مسکنس مز روزگار پکان 2 ؤری وات آمد بند گٔمٕتۍ کہ سٹھا پھکش پہ وتمت پتھ کن تران بھائی شکران پتھ کن تران. 2 ؤریو پہ کرو گورمنٹن احسان ایم ڈی اے تران, مگر آز 1-2 ؤری گئی بالکل اس بند کرمتس, اس بالکل تران کہین. تھوڑا اس مدد ملان تمہ سۭتۍ, مگر 1-2 ؤری گئی بالکل جناب 1-2 ؤرین ترووُکھ نہٕ کہین. چرخہ چلانے کا رجحان بھی اب کم ہی ہوتا جا رہا ہے. تاہم پلوامہ گڈورہ علاقے کی خواتین
आज भी गांधी मिशन को बरकरार रखे हुए हैं। भारतीय खादी आश्रम के साथ जुड़ी हुई इन खवातीन का कहना है कि इन्होंने इस सनत को कायम तो रखा है, लेकिन ये हुकूमत की अदम तवज्जुही की शिकार हो गई है। लगभग बाकिन गामन मज बिहत मगर अस थो ये जिंदा फायदे मिलान पन रोजगार हेकान पकन। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें हमारी तरफ तवज्जो दी ताकि यहाँ जो बेरोजगारी जितनी औरतें हैं उनको थोड़ा रोजगार मिले, वो अपने पाँव पे थोड़ा खड़े हो सके, अपने आप के लिए कुछ कर सके। इनको ये एनकरेजमेंट मिलती थी आर्टिजन्स को, इंसेंटिव मिलने से और एक फ़ायदा भी मिलता था, तो एनकरेजमेंट मिलती, उनकी एक दिलचस्पी बढ़ जाती थी इसमें। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भारत सरकार से कि ये जो MDA यहाँ पेंडिंग है वो सारा रिलीज़ किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि इस सनत के फरोग के लिए संजीदा इक़दाम करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। पुंछ के मनकोट सेक्टर में LOC पर वाक़े बेलनोई गांव में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। तकरीबन 2 दहाइयों बाद यहाँ इस नौइयत का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। फ़ौज की कृष्णा घाटी ब्रिगेड की जानिब से इसका इनेकाद किया गया था। मुख्तलिफ खेल मुकाबले और रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर लोगों ने फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। लोगों के मुताबिक इस इलाके में अक्सर पाकिस्तानी गोलाबारी होती थी। प्रोग्राम में मौजूद फ़ौजी अफसरों ने लोगों से तबादला ख्याल किया। और सागरा के सेंटर में बंदोई बेस कैंप यहाँ पे रखा गया और कृष्णा घाटी सेक्टर के अंदर है ये इलाका। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया और खास करके इंडियन आर्मी का जो टीमें बुलाई गई इसके ऊपर बड़ा शुक्रिया करते हैं कि ये लोगों को और समझाया गया कि नशा एक बड़ी बीमारी है। इससे जितनी मेरी तरफ से भी और तमाम देशवासियों की तरफ से ये कि नशा मुफ्ती देश होना चाहिए। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में पोल्ट्री स्कीम की कामयाबी के नतीजे में गोश्त अंडों की पैदावार में इजाफा हुआ है। लोग भी मुर्गी पालन में दिलचस्पी ले रहे हैं। माशी तरक्की और गरीबों के खुद रोजगार की सूरत में स्कीम के समरात नजर आ रहे हैं। डोडा से पेश है आतिफ लोन की ये रिपोर्ट। डोडा के पोल्ट्री फार्मों में हालिया अरसे छबरू और नेक्ड नेक परिंदों की अफजाइश की जा रही है। गोश्त और अंडों के लिए दोनों नस्लों की मुर्गियां मुफीद साबित हो रही हैं। लोगों को सस्ते दामों में ग़िज़ाइयत से भरपूर गोश्त और अंडे मुहैया कराने के मकसद से हुकूमत पोल्ट्री की स्कीमें चला रही है। लोगों में मुर्गी पालन की स्कीमात मकबूल हुई हैं। छबरू नस्ल की मुर्गियां निस्बतन वजनी होती हैं। गोश्त के लिए उन्हें पाला जाता है। नेक्ड नेक परिंदे अंडों के लिए पाले जाते हैं। बड़ सास पाँचन हथन 8 हथन ठूल कुन 5 रुपये 5-6 रुपये ठूल कुनान असल स्कीम रित बाद कुनान सास 5 हथन 6 हथन अत पन रोज गुजार खेवन अनन और तो खेवन 6 रुपये ठूल कुनान। बस यू सोन कारोबार ये स्कीम वारा रच। बैकयार्ड में ये स्कीम चल रही है। ये यूटी की अपनी स्कीम है हमारी, जिसमें पोल्ट्री के चिक्स कम से कम 10 का हम यूनिट बनाते हैं और वो पर्टिकुलरली रूरल एरिया में दिया जाता है। बेरोजगारी के खात्मे के लिए सरकार इस स्कीम को मौसर अंदाज में चला रही है। पढ़े लिखे नौजवान मुर्गी पालन की स्कीमों से फायदा उठा रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि हुकूमत की तरफ से मुहैया कराए जा रहे इन चीजों से उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है। लोगों ने हुकूमत से गुजारिश की है कि इस स्कीम को मजीद तौसी दी जाए। इससे पहले भी हमने लिए हैं बहुत बार। जो ये स्कीम है बहुत अच्छी स्कीम हमको लगी, क्योंकि ये जो हमने 2-3 बार लिए जो मुर्गे हैं उनका 2 फायदे हैं। एक तो अंडा डालते हैं मुर्गे, वो भी बेचे जाते हैं। दूसरा जो मुर्गे हैं 1000-1200 का जो अच्छी तरह से पाला जाता है तो 1000-1200 का पर मुर्गा बिक जाता है। हम यही चाहते हैं कि जैसे आज पर मतलब बंदे को 10 चूजे देते हैं तो इस स्कीम को बढ़ाया जाएगा, जैसे 10 की जगह 20 या 30 मिलना चाहिए। अफजाइश के लिए मुर्गी के चूजों की तकसीम के मामले में जिला डोडा पूरे जम्मू कश्मीर में अव्वल मुकाम पर है। एनिमल हस्बेंड्री महकमे के ओहदेदारों का कहना है कि वो बेरोजगार लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। चिक अगर 40 रुपए का है तो उसमें 25 रुपए तक की सब्सिडी एक चिक में मिलती है। तो उसी तरह जितनी उसके 1000 हों तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है।
तो और हम सुविधाएं भी देते हैं, वैक्सीनेशन करके देते हैं, ये जो बर्ड्स देते हैं और अवेलेबिलिटी आसानी से उनको हो सकती है। जहाँ तक चिक्स का जो बैकयार्ड का सवाल है, इसमें आपने हमारा जो चिक होता है वो LIT होता है, द लो इनपुट टेक्नोलॉजी, यानी कि वो घर में ही उसको पाल सकते हैं और अपना जो किचन वेस्ट है उस पर ही वो निर्भर, मतलब जो कास्ट हम कमर्शियल पे इस्तेमाल करते हैं कि उनको फीड खिलाते हैं, वो ज़रूरत उन चीज़ों के लिए। उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत इस तरह की स्कीमों में सरमाया लगाती रहेगी ताकि गरीब और बेरोजगार अपने गुजर बसर का सामान कर सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट। वादी में फुटबॉल को फ़रोग देने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ के नौजवानों में बैनुल-अक़वामी सतह के फुटबॉलर बनने की सलाहियतें मौजूद हैं। ये कहना है ईस्ट अफ्रीका के बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल खिलाड़ी कैल्विन का। न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी के साथ बातचीत के दौरान कैल्विन ने कहा कि फ़ुटबॉल के तई नौजवानों का रुझान काफ़ी अच्छा है। Regarding the football scenario in Kashmir. Yeah, football is developing very, very fast, and I'm very happy to be part of the development. And Kashmiri boys are working very hard, and they have to keep working hard, and bit by bit, football will improve in Kashmir. Is there any suggestion regarding the improvement of this very game? Yeah, firstly, they need to send the referees to good seminar. They need to teach the referee then how to ref. They need to open coaching academy for these coaches and referees. Mostly referees need to know how to ref. What about the talent of Kashmiri youngsters who are playing football? Yeah, they need to keep working hard to develop. They need to keep working hard. They need good coaches. And again, they need a good referee. They need very good referees. So what would be your message to the Kashmiri youngsters? Yeah, they need to be disciplined, work hard, and pray to God so that God can help them. But they need to work hard. They need to be disciplined. They need to listen to their coaches. What about your visit to Kashmir? Are you feeling happy by meeting people, by meeting youngsters? Yeah, I have been here 1 year now, 1 year in Kashmir, and I feel very happy to be here. Kashmiris, they are very lovely people, they are very friendly people, so I feel happy to be part of them. Yeah. These youngsters are showering love and affection to you people, and what would be your message across the globe regarding Kashmir? Yeah, it's because of the passion they have for football, they love football, so I feel very happy. And the only thing is, they need to keep supporting, and they need to keep supporting the players, those Kashmiri players that are sacrificing, that are working hard. They need to keep supporting them. And Danish Farouk is one of the good players that came from here, and now he's playing for Bengaluru. So there are a lot of talents that will come up. So they just need to keep supporting. I'm very happy to see the fans here also. मरकज़ी वज़ीर देही तरक्की गिरिराज सिंह ने कठुआ ज़िले के बिलावर में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर ने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि आइंदा साल तक जम्मू कश्मीर में ज़मीन का रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा और लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान इंतहा पसंदों की पनाहगाह बन गया है और इसकी हरकतों का मौसर जवाब दिया जाएगा। तो आज मोदी सरकार के पहले जो लोग आतंकवादियों को संरक्षण देते थे, कभी हैदराबाद में, कभी बिहार में कोई न कोई विस्फोट होते रहता था, लेकिन जब से मोदी सरकार और जब से यहाँ 370 धारा हटा है, हमारा संकल्प है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में परिवर्तन और आतंकवाद से मुक्ति, ये दोनों मेरा एसएमसी और स्मार्ट सिटी की जानिब से श्रीनगर शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए एक मुहिम जारी है। शहर के अवामी मकामात, फुटपाथ, जंक्शंस और बागीचों के बाहर की खाली जगहों की पेंटिंग के ज़रिए ब्यूटिफिकेशन की जा रही है। इस मुहिम में नौजवान और फनकार भी हिस्सा ले रहे हैं। शहर की कई मकामात पर इस तरह की पेंटिंग से शहर को खूबसूरती में चार चांद लगाने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में एसएमसी के कमिश्नर अथर आमिर ने भी हिस्सा लिया और पेंटिंग की। क्रिएटिविटी को भी एक वेंट मिलता है। इट ऑल्सो मेक्स देम फील पार्ट ऑफ द सिटी दैट दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन इट। और हमारे लिए भी ये है कि शहर की जो स्पेसेस हैं दे गेट अपलिफ्टेड, दे बिकम वाइब्रेंट। दैट्स द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज।
We'll also have proper zebra crossings, proper places where people can walk. So overall purpose यही है कि शहर थोड़ा walkable भी बनाया जाए. हमारा इतना खूबसूरत शहर है, इतना ब्यूटीफुल है, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, हम सब लोग यहाँ पे रहते हैं. स्पेस का यूज करें. जो आप देख रहे हैं पर्टिकुलर एक पाथ है जिसमें हमने वाटर ड्रॉपलेट्स डाले हैं. जैसे हमारे पास डल है, हमारे पास वाटर की काफी क्वांटिटी है कश्मीर में, तो उस हिसाब से हमने वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है डिफरेंट कलरफुल ड्रॉपलेट्स यहाँ पर डाले और हम उनको आउटलाइन करें ताकि वो वाइब्रेंट लगे और लोग जो है पार्क की तरफ हेड हो इस पाथ की वजह से. They are trying to make some colorful interventions, colorful themes within these areas. There are games, you can see Ludo over there. There are mazes. They are trying to create a miniature football court, and there are different installations that children would love to be having in this area. वादी कश्मीर के नौजवान मौसीकी और गुलकारी में भी आगे बढ़ रहे हैं. ज़िला कुलगाम के उमैर भी न सिर्फ अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं बल्कि अपने फ़न के ज़रिए रोज़गार कमा रहे हैं. पेश है ज़हूर रिजवी की ये रिपोर्ट. कुलगाम का उमैर मंजूर इन दिनों एक यूट्यूब चैनल के साथ मसरूफ है. कश्मीरी और हिंदी के अलावा रैप गाने तैयार कर रहे हैं. उमैर अपनी यूट्यूब चैनल पर इन गानों की तशहीर कर रहे हैं. इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हासिल हो रही है. उनकी यूट्यूब चैनल काफ़ी मकबूल हो रही है. 2011 में मैंने एक अमेरिकन मूवी देखी 8 माइल्स, तो उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ. उस मूवी को देखकर मैंने फिर ये सोचा कि नहीं मुझे भी कुछ करना है. तो जब मैं फिर 2012 में दिल्ली गया, मैं दिल्ली में मैंने 2 साल साउंड इंजीनियरिंग करी. उसके बाद जब मैं वापस आया तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिला. उमैर के मुताबिक नौजवान अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करके कामयाबी की राह पर गामजन हो सकते हैं. वो बुरे आदत और मंशियात से भी दूर रह सकते हैं. यहाँ पर बुरे आदत लड़कों को क्यों लग रहे हैं? यहाँ पर जो है मतलब कि नौकरियों की कमी है. मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको कोई काम नहीं मिल रहा है. तो ये भी वजह है कि वो ड्रग्स कर रहे हैं. मैं तो यही कहूँगा अगर किसी भी लड़के के अंदर कोई भी टैलेंट है, वीलॉगिंग का है, तो वो फन फैक्ट्स बोल सकते हैं, चैनल बना सकते हैं. मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आइडियाज़ है जिन पर वो काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ में वो आगे जा सकते हैं. उमैर के रिश्तेदार और उसके घर वाले उनकी कामयाबी से काफ़ी खुश हैं. उन्हें उमैर पर काफ़ी फ़ख्र महसूस हो रहा है. कुछ ऐसे कारनामे किए जो बहुत कम लोग कर पाते हैं और इसको आगे जो यूथ है उनके लिए भी हम ये नसीहत करते हैं वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए और जिसको भी अपना शौक़ है और वो इसकी तरफ आ जाए. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने भाई के वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे या किसी भी मतलब चैनल पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. एंड और ये बहुत ही अच्छा म्यूज़िक देते हैं. ये सब मतलब सभी को पता है ये बेस्ट म्यूज़िक कंपोज़र है और ये इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे. वादी में उमैर जैसे कई फनकार और सलाहियतों से मालामाल नौजवान हैं. ऐसे नौजवानों को सिर्फ वसाइल, मौक़े और हौसला अफजाई की ज़रूरत है. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट. त्राल के शाहबाद इलाके में मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जगह की कमी की वजह से अमले और तलबा को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं. तलबा का कहना है कि 8 क्लासों पर मुश्तमिल इस स्कूल में सिर्फ 4 कमरे हैं, जिसकी वजह से इन्हें दिन भर खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करनी पड़ती है. इन स्कूली बच्चों ने स्कूल के लिए एक इमारत बनवाने का हुकूमत से मुतालबा किया है. हमारे स्कूल में पहली प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्कूल में 70 बच्चे हैं, 8 क्लासेस हैं. हमारे स्कूल में 4 रूम्स हैं. हमें ये जब बारिश रेनफॉल होता है हमें ये तकलीफ होती है कि हमें बैठने के लिए जगह नहीं होता, हमें छुट्टी करना पड़ता है. के लोग हैं उन्होंने यहाँ पे गोबर डाला है, गंदगी बहुत सारी डाली है. तो चूँकि आज पेंडेमिक चल रहा है, कोविड पेंडेमिक चल रहा है, उस हवाले से हम चाहते हैं कि ये सारे गंदगी को साफ़ किया जाए, माहौल को साफ़ किया जाए ताकि बच्चे अपनी पार्टी की जानिब से सांबा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया गया. पार्टी के सूबाई सदर मनजीत सिंह ने कहा कि ये कौमी शाहराह की कुशादगी के नाम पर लोगों का काफ़ी नुकसान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हाईवे अथॉरिटी के पास पहले ही काफ़ी ज़मीन है मगर शाहराह के प्रोजेक्ट से लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है. उन्होंने मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी दी है. सड़कें इस तरह से बनाए
کہ لوگوں کو ज़्यादा नुकसान ना हो। जिस तरीके से ये बना रहे हैं ये लोगों को डैमेज कर रहे हैं, डिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और जो ऑलरेडी बिजनेस इस्टेब्लिश्ड हैं उनको नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसके लिए गडकरी साहब को भी मिलेंगे हम और उनको ये चाहेंगे कि वो खुद इसका संज्ञान लें। खासकर गडकरी से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को दोबारा रिव्यू किए जाए, लोगों से इंसाफ किया है, लोगों को मत उजाड़े। बहुत मुश्किल आगे कोविड की वजह से बिजनेसमैन बहुत मार खा रहा है, ये दुकानदार बहुत मार खा रहे हैं। इन दुकानदारों को मत उजाड़ो, इन लोगों के घर मत उजाड़ो, इन लोगों को फैन। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू ने शेर कश्मीर भवन जम्मू में एक अदबी तकरीब मुनक़्क़िद की। इस दौरान चंद किताबों की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। इस तकरीब का मकसद अजीम कलमकारों और शोरा की अदबी खिदमात को उजागर करना था। इस मौके पर मारूफ शायर मरहूम अर्श सहबाई के शेरी मजमुआ और दीगर किताबों का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। ये होता है कि उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर का जो फैब्रिक है वो उर्दू से जुड़ा हुआ है और उर्दू एक खूबसूरत लैंग्वेज है जो सारे खितों को रिजन्स को मिलाने का काम करती है। तो अंजुमन फ़रोग़ उर्दू की उसी कड़ी में ये आज बुक रिलीज़ का फंक्शन था। मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआ करता हूँ ये काफ़िला जो अदब का है ये बढ़ता रहे और समाज को जोड़ता रहे। ये ज़ुबान हिंदुस्तान की बरे-सगीर की ज़ुबान है और इस ज़ुबान की शीरीनी हमेशा रहेगी, कायम रहेगी, दायम रहेगी और शायर और अदीब इस ज़ुबान को के साथ ही जी रहे हैं और इसको हम दरसी तरीके से भी पढ़ रहे हैं और ये ज़ुबान हमारे दिलों में बस। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में हज़रत साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत पर एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। ज़ियारत ट्रस्ट के मेंबरान, समाजी कारकुन और दीगर अफराद ने तकरीब में शिरकत की। ट्रस्ट के सदर मोहम्मद रशीद भट्ट ने सदारत की और ASP पुंछ मोहम्मद लियाकत चौधरी मेहमान खुसूसी रहे। राजौरी के लियाकत चौधरी की किताब बउनवान तस्करा हज़रत बाबा साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की रस्म इजरा अंजाम दी गई। बड़ा सबक मिलता है, उनकी एक तारीखी ज़िंदगी है जो उन्होंने यहाँ आके हम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने उनको मुकर्रर किया कि आज देखेंगे आपके हर ज़ात बरादरी मज़हब मिल्लत से ऊपर उठ के लोग यहाँ पे आते हैं, फैज़याब होते हैं। तो कितनी तादाद में लोग जम्मू कश्मीर तहरीक सौतुल औलिया की जानिब से अनंतनाग के बाग नौगाम इलाके में शेख हमजा मखदूम व इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में सौतुल औलिया के अमीर मौलाना शेख अब्दुल रशीद दाऊदी व दीगर उलमा इकराम और आलिम दीन ने शिरकत की। इस मौके पर इस्लाम व इंसानियत के अलम को बुलंद रखने में औलिया इकराम के रोल पर रोशनी डाली गई और महबूबुल आलम की तालीमात को आम करने पर जोर दिया गया। सहमुतराल में कई सालों से कुछ लोगों ने एक राब्ता सड़क पर गैर कानूनी कब्जा किया था। ताहम डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की ज़ाती मदाखलत के बाद इस कब्जे को हटाकर सड़क को लोगों के नाम वक्फ किया गया। गुरुद्वारा कमेटी सहमुख के और मकामी मुसलमानों ने DC के इस इक़दाम की सराहना की और इस सड़क पर अब तामीराती काम शुरू करने की मांग की गई। हमें बिल्कुल जो गाड़ी है वो बाग में जाएगी, हर बाग में जाएगी। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इस्तदा करते हैं कि इस रोड पे जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए और इसको मैग्निमाइज किया जाए ताकि लोगों को और ख़ासकर ज़मींदारों को जो बागबानी के साथ। बानपुरा के सरहदी इलाके गुरज में कोरखबल के मकाम पर महकमे R&B ने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से पुल तामीर करने का सिलसिला शुरू किया है। तामीराती काम DDC मेंबर गुरेज तस्लीमा बेगम और कुंजलवन ब्लॉक के BDC चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन की मौजूदगी में शुरू किया। पुल की तामीर से गोरखबल की 2 बस्तियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तकरीबन 1.5 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया जा रहा है। मैं R&B का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर एक्शन R&B और जय फारूक साहब का और DDC मैडम जो गुरेज की तस्लीमा बेगम है, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पुल को तामीर करवाने में मदद की है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी के बीच कई मरकजी वज़रा आउटरीच प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उधर यहाँ की रिवायती जमातें और लीडरान से लोग बेजार नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब लीडरान का पार्टियां बदलने का सिलसिला भी जारी है। जिसको जो पार्टी मजबूत लगती है वो उसी का दामन थाम लेता है। नाजरीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं। तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।
Văzir neburim Ioan Cășiri Ceacăras. Văzir neburim Ioan Cășiri Ceacăras. Nebru çukgarım beyse ta umas. Nebru çukgarım beyse ta umas. Văzir neburim Ioan Cășiri Ceacăras. Avut nici program tovuk atnau. Avut nici program tovuk atnau. Eu sui samkan yeman karan grav grav. Eu sui samkan yeman karan grav grav. Da panchik pranyau ke yu asivas. Da panchik pranyau ke yu asivas. Văzir nebirim Ioan Cășiri Ceacăras. Nebru çukgarım beyse ta umas. Panni pănieti patun novdar. Panni pănieti patun novdar. O tahvanau çunvanı nasvar. O tahvanau çunvanı nasvar. Tawai sonli darla bitapas. Tawai sonli darla bitapas. Văzir nebirim Ioan Cășiri Ceacăras. Nebru çukgarım beyse ta umas. Lidar sări sac pareșan. Lidar sări sac pareșan. Teman çunvani yeti kohın prățan. Teman çunvani yeti kohın prățan. Barasti çoknu vani karan katas. Barasti çoknu vani karan katas. Văzir nebirim Ioan Cășiri Ceacăras. Nebru çukgarım beyse ta umas. Liderau heti dalbat dălavăni. Liderau heti dalbat dălavăni. Yorkun rehni vantea cârturcun. Yorkun rehni vantea cârturcun. Magar sări kabariyet avamas. Magar sări kabariyet avamas. Văzir nebirim Ioan Cășiri Ceacăras. Văzir nebirim Ioan Cășiri Ceacăras. Nebru çukgarım beyse ta umas. Nebru çukgarım beyse ta umas. Văzir nebirim Ioan Cășiri Ceacăras.